Able to unmute? And welcome to an AWS Mastery Bootcamp. So this is going to be a 4-day series. The idea is, of course, to have a bird's eye view of what AWS is, what cloud computing is, and how that is relevant in today's job market. आज का गोल बस इतना ही होगा कि हमें समझना है क्लाउड क्या है, क्लाउड का रेलेवेंस क्या है, उसके अंदर हाउ AWS इज मेकिंग अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड. आज अगर हमें क्लाउड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया तो वी कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड गेट इनटू मोर टेक्निकल डिटेल्स. That's going to be the entire theme of next 4 days. Now we vaguely understand the expectations that everybody is coming from, and I think we have covered all the bases already. So that's a good thing. Let's now begin with our understanding of cloud. Moving on. We have this entire bootcamp spread across 4 days. Within this 4 days, our first day, that is today, we are going to have an understanding of what cloud is. So even if you don't know anything about cloud, अगर आपको cloud के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, we are completely blank, starting from zero. It is still fine. Today's day is just for us. Tomorrow, again, we'll speak about that in detail during the end of the slide. Tomorrow, we'll get ourselves an AWS account created live on the session. We'll see a few best practices revolving around AWS, and we'll see how do we control the account in terms of the cost. Day 3 is going to be getting our hands dirty in actual AWS services. Day 3 is going to be purely technical in terms of how you will use AWS to deploy something technical. S3 is that service. हम लोग आज देखेंगे S3 का relevance क्या है in a very brief fashion. But day 3 is where we will actually start creating something on AWS. Day 4 is going to be one step further. We'll take one notch higher and move into creating EC2 instances on cloud. EC2 instances are nothing but virtual servers. The name might sound very fancy or difficult for people who are coming from non-technical background. अगर आप non-technical background से हो तो S3 क्या है, AWS क्या है, EC2 क्या है, आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा. And we are fine. That's the entire goal of this 4-day workshop, to get you guys prepared on what it takes to build a career in AWS. Having said that, I think it's now time to shift gears and moving to what is cloud computing. Now, there are tons and tons of technologies available in the market. Every guy that you meet is going to recommend you something else, and that has happened to us in the past. हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन किसी रिलेटिव ने बताया कि ये कोर्स करो, आपको जॉब मिलेगा, इसका काफी अच्छा स्कोप है, इसमें इंजीनियरिंग करो, राइट? सबका हमारा एक्सपीरियंस वही है, बट दैट डजंट ऑलवेज पैन आउट टू बी अ गुड थिंग. So we should do our own research. Speaking of research, we have done some research as well, which is current job market for cloud. And the research is not something that we have our opinion on. First link that you're seeing here is from Oracle. Oracle, if somebody doesn't know, Oracle एक बहुत बड़ा कंपनी है, डेटाबेस की दुनिया में एक जाना माना नाम है. Oracle ने क्या है that 80% of IT sector will move to cloud. इसका मतलब ये नहीं कि सबको क्लाउड इंजीनियर बनना है, ऑफ कोर्स नॉट. अभी जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, पीपल हु आर वर्किंग एज डेवलपर, यहाँ पे वी सॉ पूनम इज वर्किंग एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर. ओरेकल बोल रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2025 एवरीबडी विल हैव टू लर्न क्लाउड. तो जो लोग अभी ऑटोमेशन इंजीनियर हैं, कल वही लोग जाके क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर्स बनेंगे. जो लोग अब नेटवर्किंग इंजीनियर्स हैं, दे हैव टू बिकम क्लाउड नेटवर्किंग इंजीनियर्स. सेम थिंग गोज फॉर डेटाबेस, सेम थिंग गोज फॉर डेवऑप्स, सेम थिंग गोज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अभी जो आप आईटी सेक्टर देख रहे हो, जो अभी माइग्रेशन फेज में है, by the end of 2025, it is Oracle that is predicting that it will be on cloud, at least 80% of it. And we are seeing that this prediction is back from 2020, and we are already seeing the transition. जो लोग अभी corporate में हैं, people who are working in IT already, it could be from any other field, but you guys already know what is happening, right? This is what Oracle is predicting, but that is again for global markets. What about India? So NASSCOM, again a research organization. NASSCOM is saying by the end of 2025, India would have around 1.4 to 1.5 million cloud professionals. 14 से 15 लाख तक. लेकिन डिमांड कितना है? Over 2 million. That's an estimated demand, and that is only poised to grow. So even if we train people aggressively, we can barely reach 1.1 to 1.8 million. And that is saying a lot. इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में? सिंपल भाषा में we are saying there will be more vacancies and less people to fill those vacancies. That's the idea. That is good for us. That means that we learn cloud if we equip ourselves well. At least from the industry insiders, we are going to have a very good chance of getting inside IT. That's the idea. Now that's where the current job market stands. Now, of course, we should do our own research as well. You can simply go to naukri.com, simply search for cloud and see kitne vacancies aapko dikhenge. Right? It could be cloud, it could be DevOps engineer. Every DevOps engineer is going to need cloud, by the way. That's where we are at. Now,
वी डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट मार्केट अवेलेबल, है ना। हम इतना तो समझ में आ गया कि दुनिया क्लाउड की तरफ जा रही है और क्लाउड के स्किल सेट की डिमांड है। अब अगर क्लाउड के स्किल सेट की डिमांड है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतने ग्रेजुएट्स हैं, इतना अग्रेसिवली स्किल ट्रेनिंग हो रहा है, वाई आर वी नॉट फुलफिलिंग द डिमांड फ्रॉम आईटी? आईटी का डिमांड इंडिया फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहा है? सबसे पहली चीज, लैक ऑफ लर्निंग रोड मैप। मालूम है क्या सीखना है, कैसे सीखना? नो क्लू, राइट? दिस इज आवर प्रॉब्लम। सेकंड थिंग इज नो इंडस्ट्री इनसाइट। जब तक हम लोग स्किल सेट को एक्वायर कर लेते हैं, तब तक इंडस्ट्री आगे बढ़ गया है। नॉट ओनली दैट, जो आप स्किल सेट एक्वायर कर रहे हो, मोर देन लाइकली वो इंडस्ट्री में रेलेवेंट नहीं है। जो लोगों ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है या फिर इंजीनियरिंग किया है, आपको मालूम है अभी तक कॉलेजेस में या स्कूल्स में बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस सिखाया जा रहा है। साहिल ने बहुत एप्टली चैट में भेजा है, बाबा आदम के जमाने का सिलेबस, राइट? वेरी परफेक्ट। एंड यू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि जो लोग सिलेबस बना रहे हैं, उनको भी इंडस्ट्री का इंसाइट नहीं है। जो कॉलेजेस में आपके फैकल्टी है, उन्होंने कभी भी कंपनी में काम नहीं किया है। अगर उन्होंने कंपनी में काम नहीं किया है, हाउ कैन दे क्रिएट पीपल हु कैन लैंड अ जॉब इन आईटी? दैट्स सिंपली गोइंग टू नॉट वर्क। द लास्ट थिंग इज लैक ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव। हम लोग कोई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, कॉलेजेस में भर भर के लोगों ने सी प्लस प्लस जावा, आप अगर फ्रेशर्स के रेज्यूमे देखोगे, यूल बी सरप्राइज्ड, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज उन्होंने रेज्यूमे में मेंशन करके रखी है, टन्स एंड टन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। बट टेक्नोलॉजी का बिजनेस में यूज क्या है मालूम नहीं है। तो होता क्या है, जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको कॉर्पोरेट लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपके पास बिजनेस का इंसाइट नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नॉट ओनली क्रैक द इंटरव्यू, बट लेट्स से इफ आपने इंटरव्यू क्रैक कर भी लिया, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको ग्रो होना है, तो बिजनेस इंसाइट इज नेसेसरी। टीम लीड या मैनेजर वही इंसान बन पाता है जिसे बिजनेस के बारे में जानकारी है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज लैकिंग विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स, and if there's a problem, of course there are going to be people who will help us resolve that problem. Let's get into it. Now, speaking of people who can resolve problems, Skupen as an organization has been active for last 12 years. Now we have stood the test of time, of course, being active since 12 years and still functioning. Not only have we survived in this industry, but we are thriving. The reason behind that is, first thing is competence. We believe heavily on competence of not only technical skill set, but also the way that content is being delivered. Skupen as an organization, हम लोग टेक्निकल कॉम्पिटेंसी पे बिलीव तो करते ही हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ें अगर हम किसी को डिलीवर कर रहे हैं, तो वो टेक्निकल चीज़ें जो कैंडिडेट उसे रिसीव कर रहा है, उस तक राइट मैनर में पहुंचनी भी चाहिए। दैट्स आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ईच एंड एवरीथिंग, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज, कैन बी सिंप्लीफाइड। कितना भी कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल हो, उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, एंड दैट्स आवर यूएसपी। नाउ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, सिंस वी आर हियर सिंस लास्ट 12 years, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ कैंडिडेट्स। अगर कोई हमारे पास आता है लुकिंग फॉर सम गाइडेंस, तो हमें मालूम है कि कैंडिडेट का पेन पॉइंट क्या है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। जस्ट लाइक बिफोर वी स्टार्टेड दिस वेबिनार, हमने आपसे पूछा कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ नेक्स्ट 4 days, राइट? सेम थिंग, विद इन द सेम फैशन वी आर ऑपरेटिंग सिंस लास्ट 12 years. It's not a one-way communication. It is always a feedback-driven model which continuously improves. So that has been our motto since last 12 years, and that's the reason behind our success so far. So if we are looking to learn something, or if we are looking to understand or venture into a new territory, it makes sense to take guidance from people who have been there. So that's what Skupan is. I hope everybody is aligned so far before we go into what is cloud computing. Do we have any questions? Feel free to unmute. Feel free to No, sir. send in the chat as well. All right. We can move Okay. ahead. Awesome. Now we have a mixed crowd here. यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, यहाँ पे बीएससी ग्रेजुएट्स है, यहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग भी हैं. So who should learn cloud? First of all, IT professionals aiming to future-proof their careers. Now we are coming to a time where every profile needs at least one cloud. आपको इधर AWS आना चाहिए, या Azure आना चाहिए, या GCP आना चाहिए. Doesn't matter which one, but you should know one cloud. College graduates जो अभी कैंपस प्लेसमेंट के सिनारियो से जा रहे हैं, आपके लिए AWS आपके रिज्यूमे में होना can prove to be a game changer. Individuals who are seeking hands-on experience on cloud technologies, जो लोग ऑलरेडी क्लाउड के बारे में जानते हैं, लेकिन हैंड्स ऑन कभी किया नहीं है, बस सुना है, आपके लिए ये हैंड्स ऑन वेबिनार वुड बी अ गुड एड ऑन. एंड इंडिविजुअल सीकिंग टू इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये मैंने पर्पस ही यहाँ पे लिखा है. द रीजन इज, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, आपको समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर स्किल सेट ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हेल्प कर रहा है.
द मोमेंट यू लर्न दैट, जैसे कि आप सीखते हो ऑर्गेनाइजेशन उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, वी गेट सर्टन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपको रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफाइल, आप अभी कोई भी जॉब प्रोफाइल में हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. These are the primary individuals who should be looking towards improving their skill set. Now diving right into what is cloud computing. हमने क्लाउड बहुत बार सुना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत बार सुना है, बट हाउ डू वी डिफाइन इट? So the practice of using network of remote servers hosted on internet to store, manage, process data rather than local server or personal computer. इतना बड़ा डेफिनेशन है, बट ऑफ कोर्स इससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. सिंपली पुट, यूजिंग समवन एल्सेस कंप्यूटर टू डू योर जॉब. जब आप किसी और का कंप्यूटर यूज करके आपका खुद का काम करते हो, इसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. अब ये भी हमें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा. हम कहेंगे अब तक तो हम हमारा खुद का ही कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, किसी और का कहाँ किया है. तो वी आर ऑलरेडी यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी डे. हम सब लोग अभी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं. तो अगर आप ईमेल यूज करते हो तो यू आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, या फिर आप डेली बेसिस पे पबजी खेलते हो, है ना. आप सब लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के यूजर्स हैं. तो लेट मी प्रॉब्ली टेक वन क्वेश्चन. पूनम, लेट्स से कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने वो डॉक्यूमेंट्स खुद को मेल के ऊपर भेज के रखे. जैसे ही मैंने मेल भेज दिया, अगले दिन मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया. क्या लगता है मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलेंगे वापस या नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे. ऑफ कोर्स मिलेंगे, राइट? एवरीबॉडी एल्स एग्रीज? कैन यू गाइस सेंड Yes, सम sir. रिएक्शंस एंड टेल मी? यस सर, सर्वर पे स्टोर है वो, जो भी लोग मतलब आपने होस्टेड किया है उस पे स्टोर है वो, ये मतलब जीमेल वगैरह पे, गूगल के इस पे. करेक्ट, परफेक्ट. तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि जब हम लोग ईमेल यूज करते हैं ना, तो ईमेल का ऊपर का डेटा जो है वो हमारे खुद के कंप्यूटर पे नहीं है. एवरीबॉडी एग्रीज? कैन आई गेट सम रिएक्शंस? प्लीज फील फ्री टू यूज द रिएक्शंस बटन इन द मीटिंग और चैट. नॉट ओनली दैट, अभी हम लोग गूगल ड्राइव या आई क्लाउड यूज करते हैं. जब आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो तो मोबाइल का एक स्टोरेज मिलता है आपको. आजकल लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि कम स्टोरेज वाला फोन लेता हूं, अगर स्टोरेज कम पड़ गया तो गूगल ड्राइव पे फोटो डाल दूंगा. बराबर है? दिस इज व्हाट एवरीबॉडी डज. तो यू ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड कि आपको अगर कुछ फीचर्स यूज करना है, अभी आप डेटा स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉल्यूशंस यूज कर रहे हो. जीमेल एंड गूगल ड्राइव इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ इट. पबजी भी आप खेलते हो, बिना इंटरनेट के पबजी चलेगा क्या? व्हाट डू यू गाइस थिंक? या कोई भी वीडियो गेम हो, ऑनलाइन गेम, बिना इंटरनेट के पबजी नहीं चलेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि आप वाया इंटरनेट किसी इंटरनेट के ऊपर के सर्वर को कनेक्ट करते हो और उसके बाद पबजी खेलते हो. ये सारी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, बस हमें मालूम नहीं है. एक स्टेप फर्दर चलते हैं. सॉरी. नाउ आई कम बैक टू दिस स्लाइड. लेट्स गो थ्रू दिस स्लाइड फर्स्ट. ये थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग लगेगा. ये आपको सारे मालूम, सारे जो आगे आपके यूज केसेस हैं, ये सारे आपको मालूम है. ये सब लोग AWS को यूज करते हैं या फिर AWS का क्लाउड यूज करते हैं. नेटफ्लिक्स आप सबको मालूम है, नेटफ्लिक्स उनके वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए AWS क्लाउड यूज करता है. कोवैक्सीन हम सब लोगों ने वैक्सीन लिया होगा, अभी उसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने ले लिया है. अब कुछ नहीं कर सकते. अब जहां से आपने वैक्सीन बुक किया, दैट कोवैक्सीन का जो एप्लीकेशन था, दैट वाज होस्टेड ऑन AWS. नॉट ओनली दैट, आईफोन यूजर्स अगर यहाँ पे कोई है, आप ड्रॉपबॉक्स यूज करते हो, वो S3 नाम का सर्विस यूज करता है बैकएंड में. एंड यहाँ पे अगर कोई गैम्बलर है, IPL के टाइम पे आपने ड्रीम 11 पे पैसा लगाया था, वो जो ड्रीम 11 कंपनी है, दे आर ऑल्सो, जो आप ऐप यूज करते हो वो सारा AWS के ऊपर चलता है. ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग AWS इन पर्टिकुलर यूज किया जाता है. तो अब ये चीजें आपको बताने का पर्पस ये है कि आपको जब कोई कंपनी हायर करेगी एज अ क्लाउड इंजीनियर, तो उन्होंने भी कोई ना कोई सोल्यूशन क्लाउड के ऊपर बना के रखा है, और वो सोल्यूशन संभालने के लिए क्लाउड इंजीनियर्स को हायर किया जाता है. दिस इन अ नटशेल इज व्हाट अ क्लाउड इंजीनियर डज. ऑलराइट, we'll take a step back of course. Let's first discuss cloud computing. एक हम लोग एक दो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, देन विल सर्कल बैक टू समथिंग सिमिलर. अब क्लाउड तो समझ में आ गया. जब हम लोग किसी और का कंप्यूटर यूज करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए हो या फिर गेमिंग सर्वर हो, वेब सर्वर हो, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. ऑल गुड. अब क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन टाइप्स है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड. अब ये समझने के लिए बहुत आसान है. जैसे आप कहीं पे अगर जाना है तो आप एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करते हो. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का फायदा क्या है? सोचो आप सब लोग मिलकर कहीं पे बस से जा रहे हो, आपने बस बुक किया है कहीं जाने के लिए. तो सिंस 20-22 लोग मिलकर बस से जा रहे हैं, आप सब लोगों ने बस को शेयर किया है, इसके लिए बस इज चीप, है ना. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अफोर्डेबल. वैसे ही पब्लिक क्लाउड है. पब्लिक क्लाउड पे आप और मेरे जैसा कोई भी इंसान जाके अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उसे यूज कर सकता है.
Anybody can go on public cloud, create an account and start using it. Now that is what we refer as public cloud. यहाँ पे चीजें शेयर होती हैं और शेयर होने की वजह से ही दे आर अफोर्डेबल. तो आप लोगों ने जो AWS सुना है, Azure सुना है, Alibaba, GCP, IBM क्लाउड, Oracle क्लाउड, ये सारे पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल्स हैं. इनफैक्ट वेरी लार्ज स्केल एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक क्लाउड. ऑलराइट, अब जैसे पब्लिक क्लाउड है, आप आराम से गेस कर सकते हो प्राइवेट क्लाउड क्या होगा. प्राइवेट क्लाउड किसी के लिए डेडिकेटेड क्लाउड सेटअप है. जैसे आपने खुद का गाड़ी अगर परचेस कर लिया तो आपका गाड़ी सिर्फ आप ही चलाते हो, ये किसी के साथ शेयर नहीं होगा. सिर्फ आप ही चलाते हो, आपने ही परचेस किया है, तो ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव होगा, है ना. अब अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्राइवेट गाड़ी खरीदने का एडवांटेज क्या है? एनीबॉडी कैन टेल? We can use it as per our convenience परफेक्ट. and Would you all say data कि- secure रहेगा. एब्सोल्युटली राइट. अगर मैं इसी तरह पुट करता हूँ, वी कैन मेंटेन आवर डेटा प्राइवेसी बेटर ऑन प्राइवेट क्लाउड, विल दैट बी अ फेयर स्टेटमेंट? है ना. वैसे ही जैसे आप खुद की गाड़ी में चलोगे तो आपको प्राइवेसी मिलता है, वैसे ही प्राइवेट क्लाउड अगर कोई कंपनी लेगा तो उनको भी प्राइवेसी मिलता है. एंड देन देयर इज हाइब्रिड क्लाउड. तो ऑर्गेनाइजेशंस अभी हाइब्रिड क्लाउड पे फोकस कर रही है. मतलब जो चीजें पब्लिक क्लाउड पे अच्छी है वहां पे पब्लिक क्लाउड को यूज करेंगे, जो चीजें प्राइवेट क्लाउड पे अच्छी है वहां पे प्राइवेट क्लाउड को यूज करेंगे. ओके, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं, flipkart.com पे हम सबने शॉपिंग किया है ना. अभी रिसेंटली उनका सेल भी था. अब मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, flipkart.com के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो वो लोग जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो मुझे दिखेंगे, बराबर है. क्या मैं उनके एम्प्लॉय का डेटा भी देख सकता हूँ? व्हाट डू यू थिंक? कैन आई सी फ्लिपकार्ट का एम्प्लॉय का डेटाबेस? नो या सर. फिर कैन आई सी कि उन्होंने एवरीडे कितना प्रॉफिट कमाया है, एम्प्लॉयज का सैलरी कितना है ना, सीईओ का सैलरी कितना है, ये सारी चीजें मैं नहीं देख सकता. इसका मतलब क्या है? फ्लिपकार्ट इज वेरी क्लेवर. जो चीजें पब्लिक करनी है वो उन्होंने पब्लिक कर दी, जो चीजें प्राइवेट रखनी है दे हैव केप्ट इट प्राइवेट. सो दिस शुड गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस थिंक. ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सोचते हैं, इससे हमें आइडिया मिलना चाहिए, राइट. और एक अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे तो हम सब लोगों का एक ड्रीम होता है हमेशा कि हम लोग दोस्तों में मिलकर कैफे ओपन करें, है ना. हम लोग बैठते हैं, पेपर पे कैलकुलेशन करते हैं कि कैफे ओपन करेंगे, हर दिन 5,000 का बिजनेस होगा, उसमें से 4,000 का प्रॉफिट होगा, करेक्ट. अब जब हम लोग कॉलेज के सामने बैठते हैं, आगे चाय पीते हैं, बोलते हैं कि चाय वाला कितना बिजनेस करता रहेगा, ये सोच के हम सब लोग कैफे ओपन करते हैं, चलता नहीं है, वो बात अलग है. बट इमेजिन अगर मैं कैफे ओपन करता हूँ और कैफे ओपन करने के लिए मैंने खुद का दुकान परचेस कर लिया 1 करोड़ को. डू यू थिंक दैट्स अ वाइज डिसीजन? व्हाट डू यू थिंक? स्मार्ट डिसीजन है क्या ये? मुझे कैफे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, कभी नहीं किया. डू यू थिंक दैट इज स्मार्ट? है ना. नो. नॉट एट ऑल. क्यों? आपको मालूम है कैफे नहीं चलेगा, 1 करोड़ डूब गया. इसके लिए आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? रेंटेड सर्विस. रेंट पे ले लो. परफेक्ट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पब्लिक क्लाउड इज. और इसी रीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस भी पब्लिक क्लाउड को यूज करते हैं. उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, मालूम नहीं है कितने दिन चलेगा, है ना. फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, पब्लिक क्लाउड पे चलो. दैट्स आइडिया. राइट, फेयर इनफ. क्या सबको समझ में आया कि पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्या है? जस्ट अ बर्ड्स आई व्यू. Yes. परफेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी डिस्कस कर लिया कि अगर हमें एक कैफे ओपन करना है तो रेंट पे ले लो, वही अच्छा है. वही क्लाउड पे लोग करते हैं, इसी के लिए क्लाउड पे नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसी के लिए क्लाउड की तरफ लोगों का माइग्रेशन काफी बढ़ चुका है. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने का. आप सब लोग गूगल ड्राइव पे डेटा रखते हो, कभी गूगल ने आपसे पैसा मांगा एडवांस में? 15 GB तक तो फ्री है, बट गूगल कभी भी आपसे एडवांस में पैसा नहीं मांगता, राइट है. वैसे ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज करो, AWS पे भी जाओ, आपसे एडवांस में कोई भी पैसा नहीं लेगा, कंपनी से भी नहीं लेगा. तो दिस इज व्हाई पीपल यूज क्लाउड. कल को आप गूगल ड्राइव पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखते हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब गूगल ड्राइव पे डेटा गया, वो उनके सर्वर के ऊपर चला गया. अब डेटा की सिक्योरिटी के लिए या फिर कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए आप लोग गूगल के बाहर टोपी पहन के तो नहीं बैठे ना, एज अ वॉचमैन नहीं बैठते. हम लोग कोई और हार्डवेयर मैनेज कर रहा है, बराबर है. हम टेंशन नहीं लेते, हम बोलते हैं गूगल ड्राइव पे डेटा रखा है, अच्छा पासवर्ड रखा है, मेरे डेटा को कुछ नहीं होगा, बराबर है. तो इसका मतलब नो नीड फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर. हमने कभी ऐसा नहीं सुना ना कि गूगल के ऊपर मैंने डेटा रखा था लेकिन वो गूगल का कंप्यूटर को चोरी करके लेके गया, कभी नहीं सुना. या फिर गूगल का कंप्यूटर मेंटेनेंस में डाउन हो गया, मेरा डेटा लॉस हो गया, कभी नहीं सुना. तो हार्डवेयर मैनेज आपके लिए गूगल करता है, करेक्ट है. अलॉन्ग विद दैट बीइंग एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, आपने ईमेल के ऊपर डेटा रख दिया, आप भूल गए. या फिर आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने वो डिजिलॉकर में अपने आपके डॉक्यूमेंट रखे हैं. आप लोग यूज करते हो क्या? एनीबॉडी यूज डिजिलॉकर टू स्टोर देयर डॉक्यूमेंट्स? Yes. आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप बोलते रुको, अभी मेरे पास इंटरनेट है, मैं आपको डिजिलॉकर में डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ. कहीं पे भी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग है. सो दिस प्रूव्स दैट क्लाउड कंप्यूटिंग इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट. नो रिस्क ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू एनी कैलामिटी, ड्यू टू मल्टीपल बैकअप्स. जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आग लग गया कहीं पे और आपका डेटा लॉस हो गया, आपने ऐसा कभी नहीं सुना, राइट. यहाँ पे बैकअप ले सकते हो आप. एंड पे पर यूज एंड स्टॉप एनी टाइम. आप कभी भी स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है. आप में से अगर कोई कभी रेंट पे घर लेने के लिए गया है तो आपको कभी कभी वो ओनर बोलता है कि 1 साल का लॉकिंग पीरियड, किसी सुना है? एग्रीमेंट पे लिख के आता है 1 साल के पहले अगर आप छोड़ के चले गए तो पूरा रेंट देना पड़ेगा, है ना. कमिटमेंट देना पड़ता है. क्लाउड पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है, जब मन चाहे आओ, मन चाहे चले जाओ. जितना क्लाउड यूज किया उतना ही यूज करो, पे करो rather. ना इतनी सारी चीजें क्लाउड में अच्छी है, बहुत चीजें आसान है, सब कुछ कोई और मैनेज कर रहा है. अगर इतना अच्छा है तो कंपनी में अकेला मैनेजर बैठ के सब कुछ क्यों नहीं कर रहा है ना, अगर इतना आसान है तो. सो ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग इज दैट गुड. देयर आर सर्टेन चैलेंजेस विद यूजिंग क्लाउड. चैलेंजेस है, इसी के लिए क्लाउड इंजीनियर के लिए जॉब्स है. और चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि बहुत बड़े चैलेंजेस है, इसके लिए क्लाउड इंजीनियर का सैलरी बहुत ज्यादा है. ऑल्दो चैलेंजेस आर वेरी स्मॉल.
बट ऑफकोर्स हमें ये कंपनी को नहीं बताना है ना, वी विल से चैलेंजेस आर वेरी बिग। सबसे पहला चैलेंज डेटा प्राइवेसी। अगर डेटा आपके कंप्यूटर पे नहीं है, कहीं और है, इसका मतलब आपके मन में पहले डाउट आना चाहिए कि मेरा प्राइवेसी का क्या, जबकि हमारे डेटा को कोई क्यों हैक करेगा, फिर भी हम लोग चिंता करते हैं। आप सोचो कंपनी कितना चिंता करेगा। इमेजिन हाउ मच ऑर्गेनाइजेशंस वुड बी वरीड अबाउट सिक्योरिंग देयर डेटा। इफ देयर डेटा फॉल्स इनटू सम रॉन्ग हैंड्स, देयर स्टॉक्स विल क्रम्बल, राइट? सो देयर आर सर्टेन बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कम विद क्लाउड। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करोगे तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। आप इमेजिन करो आपकी ईमेल का पासवर्ड अगर है, लेट्स से यहाँ पे श्रद्धा है, श्रद्धा का ईमेल का पासवर्ड लेट्स इमेजिन श्रद्धा@123 है। अब उसका अगर ईमेल हैक हो गया और श्रद्धा आपके पास आई और बोली मेरा ईमेल हैक हो गया, तो आप क्या बोलोगे, किसकी गलती है, श्रद्धा की या गूगल की? व्हाट डू यू थिंक? इफ आई एम कीपिंग अ वेरी सिंपल पासवर्ड, इज दैट माय मिस्टेक और गूगल्स मिस्टेक इफ माय डेटा गेट्स हैक्ड, राइट? सो इट्स आवर मिस्टेक। तो आपको मालूम है कि बेस्ट प्रैक्टिस है पासवर्ड के खुद का नाम मत लिखो, खुद का बर्थ डेट मत लिखो, फैमिली का किसी का नाम मत लिखो। तो ऐसे ही बेस्ट प्रैक्टिस क्लाउड में भी है। आप यूज करोगे डेटा सिक्योर रहेगा, राइट? दैट्स व्हाई वी आर हियर। कंप्लायंस एंड क्रॉस बॉर्डर डेटा स्टोरेज इश्यूज। आप जब क्लाउड पे डेटा रखते हो तो बॉर्डर के पार भी जा सकता है, तो कैसे उसे हैंडल करना है, इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। इसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करते। इलेबरेट एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड विद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल विद क्लाउड। मतलब क्लाउड पे चीजें करना बहुत आसान है, कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी कर सकता है जब तक आप कुछ कंट्रोल नहीं लगाते। तो कौन सी चीजें कौन सा यूजर कर सकता है, ये क्लाउड इंजीनियर कंट्रोल करता है, जो हमारा रिस्पांसिबिलिटी है। एंड देन एंटरप्राइज पैराडाइम शिफ्ट नीडेड, दैट इज डेवऑप्स। जस्ट हैविंग क्लाउड इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके आगे आपका डेवऑप्स भी चालू होता है, जहाँ पे लोगों का माइंडसेट भी बदलना जरूरी है। डेवऑप्स कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, डेवऑप्स इज अ कल्चर, इट्स अ माइंडसेट। तो ये माइंडसेट कंपनी में आना भी जरूरी है। These are all the challenges. That's what we are here to tackle. Moving on, do we have any doubts so far on what is working with cloud? What are the challenges? Any clarification needed? Feel free to unmute yourself, speak up. All clear? Great. Let's proceed. AWS सक्सेस स्टोरीज अभी हमने डिस्कस किया। जब हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, आई वांट यू गाइस टू डू अ क्विक गूगल सर्च आल्सो कि AWS के इंडिया में कौन से सक्सेस स्टोरीज है, स्पेसिफिकली इंडिया। अगर यहाँ पे कोई बैचलर है और शादी के लिए ढूंढ रहा है, तो शादी.com आल्सो यूज AWS बाय द वे। ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, मिलेंगे, या फिर यूज केसेस दिखेंगे जहाँ पे लोग AWS को यूज करते हैं। तो आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू couple of Google search, of course after the session. Treat it as a homework. Okay, let's proceed. अब बातें तो बहुत हो गई, है ना? देखते हैं क्लाउड को इन एक्शन, इन फॉक्स, राइट? तो हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे सबके लिए। हम लोग अभी क्या करेंगे, मैं आपको अभी सबको चैट में एक आईपी एड्रेस भेजूंगा, ओके? अब आईपी एड्रेस आपको मालूम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी मैं टेक्स्ट भेजूंगा ना चैट में, इसे कॉपी करो और आपके पास गूगल क्रोम है या एज है या कोई भी सफारी वगैरह है, उसमें उसे पेस्ट कर दो। जहाँ पे आप लिखते हो ना facebook.com, instagram.com, वहाँ पे उसे पेस्ट कर दो और मुझे बताओ कि क्या आपको एक वेबसाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैं भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी ने फोन के ऊपर ज्वाइन किया तो आपको ये देखने के लिए कन्वीनियंट रहेगा। We can see it. You can see, you should see a Scoopon का वेबसाइट, इट्स अ वेरी बेसिक वन, ये लाइव नहीं है, ये बस हमारे टेस्टिंग के लिए हमने बनाया है। आई वांट एवरीबॉडी टू गो एंड सी। ये आपके लिए पहला इंटरेक्शन होगा क्लाउड के साथ, जो आप बैकएंड में जाके देख भी सकोगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। कैन एवरीबॉडी प्लीज कॉपी द आईपी एड्रेस, गो एंड पेस्ट इट ऑन द ब्राउजर, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी, इफ यू गाइस कैन सेंड मी द रिएक्शंस। मीटिंग में मुझे पता चल जाएगा कि, या फिर ऑफ कोर्स यूज द चैट। सबको दिखा है वेबसाइट? नाइस, ओके। तो ये एक छोटा सा टेस्ट वेबसाइट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे ये जो वेबसाइट आपको दिखा है, ये क्लाउड के ऊपर होस्टेड है बाय द वे। मैं आपको क्लाउड का बैकएंड भी दिखाऊंगा बाद में। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला वाला है साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर। मतलब यहाँ पे अगर आपका नाम और ईमेल आईडी डालोगे, आप इमेजिन करो हमको ये बिजनेस है, ये ऑप्शन आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। आई वांट यू गाइस टू एंटर योर नेम एंड ईमेल आईडी, ओके? डोंट वरी, वी विल नॉट स्पैम यू विद अनवांटेड ईमेल्स ऑफ कोर्स, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग समथिंग। जस्ट एंटर एंड लेट मी नो इफ इट सेज सक्सेसफुल। Thank you for signing up. ग्रेट, सब लोग करो। हम ये फ्रंट एंड देख रहे हैं, बाद में इसका बैक एंड भी दिखाऊंगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा देखने के लिए। ट्राई आउट। ओके, अगर सबने वो फंक्शन ट्राई कर लिया तो वापस वो होम पेज पे आ जाओ जहाँ पे आपने आईपी पे क्लिक किया था। वहाँ पे और एक ऑप्शन है, वहाँ पे ऑप्शन है अपलोड योर रेज्यूमे। सो दिस इज फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ 1-to-1 करियर गाइडेंस सेशन। अब ये रेज्यूमे अपडेट का बटन है, यहाँ पे आपको रेज्यूमे ही अपडेट करना है ऐसा नहीं है, ये बस टेस्टिंग के लिए है। आपके पास कोई भी फाइल हो, फील फ्री टू अपलोड। जस्ट ब्राउज पे क्लिक करो, फाइल सेलेक्ट करो, छोटा सा फाइल अपलोड करो, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा आप अपलोड करोगे तो टाइम लग जाएगा। इट कैन Loaded, sir. हैंडल सक्सेसफुल। Yes, sir. ओके, प्लीज एवरीबॉडी एल्स यू डू इट एज वेल, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द बैकएंड। अगर आप इसे ट्राई करोगे अभी तो बाद में बैकएंड देखने में मजा आएगा। कोई भी रैंडम फाइल अपलोड कर दो, नो टेंशन। कोई टेक्स्ट फाइल हो, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है तो बनाओ एक टेक्स्ट फाइल और अपलोड कर दो। डायरेक्टली यहाँ पे बटन है, क्लिक ऑन चूज फाइल एंड सिंपली अपलोड। लेट मी नो वंस यू गाइस आर डन, देन आई विल गिव यू अ बिहाइंड द सीन्स व्यू, BTS। Done, sir. Done? Yes. ग्रेट। नाउ अभी जो आपने देखा ये पूरा फंक्शनैलिटी स्कूपन के AWS के अकाउंट पे होस्टेड है। क्या आपने सिमिलर ऑप्शंस Naukri.com पे भी देखा है? अपलोड योर रेज्यूमे का बटन आता है, यू गाइस हैव सीन राइट, Yes. है ना? या फिर Instagram पे अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, उसका भी बटन आता है। Yes, sir. बहुत बार आप कभी ऑनलाइन कहीं पे इंक्वायरी करते हो तो आप वहाँ पे आपका ईमेल आईडी और नंबर डालते हो, ये भी चीज़ आपने दिखाई, आपको फिर थैंक यू का मैसेज आता है ना? एवरी डे हम लोग ऐसे दिन में हजारों इंटरेक्शंस करते हैं जहाँ पे हमें पता भी नहीं होता पीछे क्या चल रहा है। बस हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, नौकरी पे रेज्यूमे अपलोड कर दिया, Instagram पे डीपी बदल दिया, हर 2 दिन में डीपी बदल रहे हो, पीछे क्या चल रहा है। नाउ लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो आपको मीटिंग में मैं एक लिंक भेजूंगा, ये हमारे AWS के अकाउंट का लिंक है।
ओके, बस एक ब्राउजर में साइड में टैब ओपन करो और इस लिंक को पेस्ट कर दो। जैसे ही आप लिंक को पेस्ट करोगे ना, आपको पूछेगा वहां पे यूजर नेम एंड आपको पूछा जाएगा पासवर्ड। मैंने यूजर नेम पासवर्ड दोनों चैट में डाल दिया है। ये है एक्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग AWS का एक लाइव अकाउंट है। हम डे 1 पे ही आपको एक स्नीक पीक दिखा रहे हैं बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। लिंक पे क्लिक करो, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, एंटर द यूजर नेम पासवर्ड, लेट मी नो इफ एवरीबडी इज एबल टू लॉग इन। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। श्रद्धा इज नॉट एबल टू गेट द लिंक, मैं आपको लिंक वापस पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। So I didn't get the link. Yes, sir. आपको चैट में लिंक, सॉरी आई इंडिविजुअली पेस्टेड इट, रियली सॉरी अबाउट दैट। लेट मी शेयर द लिंक नाउ, कैन यू सी इट नाउ? No, yes. दिस इज द यूजर नेम व्हिच इज कूपन, पासवर्ड इज first hash 1234। Yes, sir. Console open हुआ है. कंसोल ओपन हुआ, एवरीबडी प्लीज ट्राई। So what is the password? फर्स्ट हैश 1234 F कैपिटल, पासवर्ड अभी मैंने चैट में डाला है। राइट, जस्ट गिव अ थम्स अप जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हो। है ना? एवरीबडी प्लीज इफ यू गाइस कैन गिव मी अ थम्स अप, आई विल गेट टू नो वेदर यू हैव इन और नो। ऑलराइट, आई थिंक बहुत सारे लोग लॉगिन कर चुके हैं। जिन्होंने फोन से अभी मीटिंग ज्वाइन किया है, आई विल गिव यू गाइस अ व्यू फ्रॉम माय स्क्रीन। अभी आप सब लोग हमारे AWS के अकाउंट के अंदर हो। तो इमेजिन नेटफ्लिक्स जो वीडियो स्ट्रीमिंग करता है उनका भी ऐसे ही AWS का अकाउंट होगा, लिटरली सेम। लेट दैट बी नेटफ्लिक्स, ड्रीम 11, यू नेम इट, सबका ऐसे ही एक AWS अकाउंट होगा। अब चलते हैं पहले S3 बकेट में। तो आप लोगों ने जो रेज्यूमे अपलोड का बटन यूज किया ना, वो बैकएंड में इस सर्विस को यूज करता है। वैसे हमने कोडिंग किया है पीछे। स्कूपन नाम का हमारा एक बकेट है, इसके अंदर हमारे फाइल्स जो भी आपने अपलोड किए हैं ये दिखेंगे। अब स्क्रीन के ऊपर देखो, अगर जो लोगों ने लॉगिन किया है आपको भी मैं बताऊंगा कैसे जाना है अंदर, बट करंटली इफ यू फोकस ऑन स्क्रीन, आप देखोगे आपने जो भी फाइल्स अपलोड किए ना, मुझे सारे यहाँ पे पीछे दिख रहे हैं। साहिल का यहाँ पे रेज्यूमे है, किसी ने टेस्ट TXT अपलोड किया है, किसी ने query.txt, किसी ने पाइथन सेलेनियम के इंटरव्यूज, JD VMware, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का PDF, चिकन सूप रेसिपी, वेरी नाइस, प्रिटी क्रिएटिव। बट या ये है बिहाइंड द सीन्स, ये है बैकएंड, यहाँ पे चल रहा है सब कुछ। अब जो लोगों ने लॉगिन किया है, आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको भी ये सेम चीजें देखनी है, अगर आपको चिकन सूप का रेसिपी चाहिए, तो वहां पे ऊपर सर्च बटन दिख रहा है, यहाँ पे S3 सर्च करो, S एंड डिजिट में 3। आप जैसे ही क्लिक करोगे S3 के ऊपर, यहाँ पे इस कूपन नाम दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे रेज्यूमेस करके फोल्डर दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करो और आपको भी दिखेगा बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। मैंने आपको एक्सेस दिया है वो करने का, देखने का। एवरीबडी एबल टू सी? जिन्होंने भी अकाउंट में लॉगिन किया है आप सब लोग जाके देखो। ओके, एवरीबडी एबल टू सी? Yes, sir. ऑसम। तो ये होता है जब आप नौकरी में भी रेज्यूमे अपलोड करते हो। लिटरली आई एम नॉट सेइंग दे आर यूजिंग AWS, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द बैकएंड मैकेनिज्म। अब ये तो बहुत ऊपर की वाली बात हो गई। अब देखते हैं आपने जो साइन अप किया था ना, वो डेटा कहाँ पे है। वो अभी आप सब लोग मीटिंग पे वापस आ जाओ, फोकस ऑन द स्क्रीन दैट आई एम शेयरिंग, प्लीज कम बैक टू द मीटिंग, प्लीज फोकस ऑन व्हाटएवर वी आर शेयरिंग। ओके, अब हम लोग देखते हैं आपने जो ईमेल आईडी वगैरह डाला था ना, नाम और ईमेल आईडी, वो कहाँ पे है। बाय द वे, आप जो वेबसाइट वगैरह देख रहे थे, ये इस वर्चुअल सर्वर पे क्रिएट हुआ है। आप भी इसे EC2 नाम के सर्विस में जाके देख सकते हो, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं दिखते। डे 1 है हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपने डेटा एंटर किया ना, आपका नाम और ईमेल आईडी डाला होगा आपने, वो देखते हैं कहाँ गया है। मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से जूम इन नहीं हो रहा है। लेट्स यूज सम अदर मेथड ताकि रीडेबल लगे। डोंट वरी, यहाँ पे अभी जो मैं दिखा रहा हूँ हम में से किसी को भी नहीं मालूम। ये चीजें हम लोग सीखेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ बिहाइंड द सीन्स व्यू, नथिंग एल्स। ठीक है, सबके लिए एटलीस्ट रीडेबल है। हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स कनेक्ट टू डेटाबेस। Hello. या I am audible. यस,
Okay, fine. Sorry for later entering. No problem. I think this one the recording your side. Yes, it is getting recorded. Okay. After that, after the end class, you are the sharing the recording. Yes, we will be sharing. Okay. So let's focus for 2 more minutes, guys. आगे अभी अगर आप फोकस करोगे तो आपने जो आपका नाम और ईमेल आईडी डाला ना, वो पीछे गया है एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे डेटाबेस का नाम है स्कूपन। ठीक है, यहाँ पे अगेन आप में से किसी को भी माइस्क्यूएल नहीं आता है या डेटाबेस नहीं आता है, ये अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, तो डोंट वरी। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या इस सेशन का इज इट अंजनी? अंजनी, ये सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे और कल हम लोग सेशन जब दूसरा चालू करेंगे तो हम थोड़ा रिपीट भी करेंगे। आपका अगर कुछ ओके फाइन, थैंक यू डोंट वरी, ओके ठीक है। तो डेटाबेस वगैरह हम किसी को कुछ नहीं मालूम, वो पॉइंट नहीं है। अभी हमें बस इतना दिखना है कि हमने जो डेटा एंटर किया है यहाँ पे आया है कि नहीं। देखो अभी जो आपने सारे फॉर्म भरे ना, इतने बजे फॉर्म भरे, ये यूटीसी टाइमिंग ऑफ कोर्स, बट सी दिस, लेट्स से अप्रतिम ने a@c.com का ईमेल आईडी डाला है। आई गॉट ईच एंड एवरी डेटा। यही आपके डेली बेसिस में जब आप कोई वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हो या किसी से भी इंटरेक्ट करते हो, बैकएंड में यही चल रहा है। अब टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, moral of the story is, and I'll stop the screen share for a moment so that we can have an interaction. The moral of the story here is, हमें डेली बेसिस पे हम जितनी चीजें इंटरेक्ट करते हैं हमें मालूम नहीं है पीछे क्या है। तो इस सिनेरियो में हमने अभी देखा जो आप कॉमनली चीजें यूज करते हो वो पीछे कैसे डिजाइन है। दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट AWS is. Not only did I host my website, I created a file server, I created a database server, each and everything on AWS. और ये तो काफी सिंपलिस्टिक सोल्यूशन है। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज भी AWS पे डिप्लॉय कर सकते हो। मुझे बताओ, नेटफ्लिक्स से बड़ा OTT प्लेटफॉर्म दुनिया में है क्या? डू वी हैव एनीथिंग बिगर देन नेटफ्लिक्स? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं आपसे कहूँ Amazon.com, जहां से आप शॉपिंग करते हो, इफ आई टेल यू कि ये दुनिया के टॉप 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट में से है, वुड यू गाइस एग्री? अलीबाबा को मैं साथ में कंसीडर कर रहा हूँ, वुड ऑल ऑफ यू एग्री? यस। यस, ट्रिलियन डॉलर कंपनी, राइट? ये भी AWS को यूज करता है। Amazon का डेटाबेस अगर आपको मालूम नहीं है, ये AWS के ऊपर है। जब आप शॉपिंग करते हो ना, लेट्स से पूनम ने कुछ शॉपिंग किया अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, जैसे मैंने अभी आपको डेटाबेस दिखाया पीछे, वैसे वहां पे पूनम का एक एंट्री जाता है कि उसने इतना इतना शॉपिंग किया है। ये सारी चीजें बैकएंड में हो रही है, हमें मालूम ही नहीं है, हम लोग कंज्यूमर्स है, यूज हो रहे हैं। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हो, जब आप AWS सीखते हो, तो आपको ये बैकएंड व्यू मिलता है। अब ये बैकएंड व्यू देने का पर्पस क्या है? मैं डायरेक्टली क्यों नहीं सिखा रहा हूँ आपको अकाउंट क्रिएशन, EC2 क्रिएशन, S3 क्रिएशन? सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखोगे, उसका यूज क्या है, फिर फायदा क्या है? जब आप इंटरव्यू में जाओगे, द वे दैट यू विल टॉक विल बी वेरी डिफरेंट व्हेन यू नो द बिजनेस यूज केस। जस्ट रट्टा मार के आया, टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, डजंट क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट? वी वांट पीपल टू क्रिएट इम्पैक्ट, एंड दैट्स वेयर दिस बिहाइंड द सीन्स। ऑलराइट, we are almost an hour in, we just have few more slides to go, but before we jump into that, do we have any questions that we can address? Hi sir, Deepak here sir. Hey Deepak. सर अभी जो हमने बैकएंड में देखा, जो हमने हमारे जो अभी डिटेल्स जो डेटाबेस में जो देखा, इज इट पॉसिबल कि वो हमें GUI में भी दिखे? हम उसको मतलब एज एन इसमें देख सकते हैं सर कि मतलब ये डेटाबेस, जैसे आपने तो सर इसमें CLI में लॉगिन करके देखा सर, तो क्या हम इसको मतलब UI में भी देख सकते हैं कि किसने कितने मतलब कौन सी ईमेल से लॉगिन किया है करके? डेफिनेटली, जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, उसका काम जी यही है, वो डेटा को बैकएंड से उठा के लेके अच्छी तरह से प्रिटी और एस्थेटिक मैनर में पोर्ट्रे करता है। नॉट ओनली Okay. फ्रंट एंड डेवलपर, आप लोगों ने पावर BI टैबलेट के बारे में सुना होगा, हाँ, पावर बेस सुना है सर। है ना? आपने मे भी अगर पुराने जमाने की आप पिक्चर देखोगे ना, तो वहां पे दिखाते थे कि मीटिंग रूम में हीरो बैठा है और आगे बड़े बड़े चार्ट दिखाए हैं, फिर वो चार्ट को देख के डिसीजन लेता है ना? वो चार्ट विजुअलाइजेशन से सारे पावर BI और टैब्लू वाले लोग बनाते हैं। ये भी बनता है इस तरह के बैकएंड डेटाबेस को कनेक्ट करके। तो टैब्लू बैकएंड डेटाबेस को कनेक्ट करता है, पीछे आपको एकदम अच्छा व्यू मिलता है जो देखने के लिए अच्छा है। तो जो कंपनी के CEO CFO वगैरह है ना, वो भी आपके जैसा, उनको वो बैकएंड डेटाबेस देखने में उसको मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो वो इस डेटा को विजुअलाइज करते हैं यूजिंग पावर BI और टैब्लू और एनी अदर टूल फॉर दैट मैटर। ओके सर, थैंक यू सर। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Okay. हेलो सर, आई वांट टू आस्क यू कि अभी जैसे आपने बोला कि डेटा जो है वो बहुत सारा रहेगा क्लाउड पे, तो जो डेटा मतलब ओल्ड डेटा है या फिर न्यू डेटा है, वो ओल्ड डेटा जाएगा ना? मतलब अभी जैसे मैं पासवर्ड है, अभी मैं फेसबुक यूज़ कर रही हूँ, पासवर्ड मैं मतलब 10-12 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो फिर जो ओल्ड पासवर्ड है, वो जो ओल्ड डेटा है वो कैसे होगा और ये न्यू डेटा कैसे अपडेट होता है? मतलब ओल्ड डेटा का डिपेंड क्या करता होता है, है फिर? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने पासवर्ड का एग्जांपल लिया, हम्म। फेसबुक को आपके पुराने पासवर्ड रख के कोई फायदा नहीं है, बराबर है? राइट।
तो वो लोग इंटरनली एक पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि 1 साल से पुराने जो पासवर्ड है ना उनको निकाल दो। लेकिन आपको अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि आपको आपके 10-12 पुराने साल के मेमोरीज भी दिखते हैं, है ना? पुराने यस। फोटो आपको डेफिनेटली दिखते हैं। अभी आप देखोगे रेट्रोस्पेक्टिवली तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन है वहाँ पे फोटो। तो फेसबुक को मालूम है कि लोगों को पुराने फोटो देखना अच्छा लगता है, तो वो उनको डिलीट नहीं करेंगे। तो जैसा ज़रूरत है उस तरह से पॉलिसी डिसाइड होता है और उस तरह से डेटा को डिलीट या फिर पर्ज किया जाता है। मेक सेंस? ओके, अंडरस्टूड। यस, मीन्स ये क्लाइंट के ऊपर डिसाइड होगा कि उनको कितना डेटा रखना है। ओके, करेक्ट, थैंक दैट इज द राइट वे टू पुट इट। सर साहिल हियर। Yep. सर होस्टिंगर और एडब्ल्यूएस में क्या डिफरेंस है सर? मतलब होस्टिंगर में अपन होस्ट करते हैं सिंपल भाषा में वेबसाइट समझते हैं। वेब डेवलपर आपको मालूम है जो HTML का कोड लिखता है यस यस ना? वेब डेवलपर जैसे स्पाइडरमैन वेब डेवलप करता है, वैसे ही वेब डेवलपर HTML का कोड लिखता है। अब HTML का कोड मैंने लिखा, है ना? और फाइल सेव कर लिया मेरे कंप्यूटर के ऊपर या फिर फाइल मैंने पेन ड्राइव में रखा। अगर मेरे पास HTML का फाइल है, पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है, उसका कुछ फायदा है क्या? किसी को दिखेगा क्या वो वेबसाइट? नहीं बराबर है। आप कितना भी अच्छा HTML का कोडिंग करो, जब तक आप उसे किसी सर्वर के ऊपर रन नहीं करते, तब तक वो वेबसाइट दुनिया को नहीं दिखेगा। बराबर है। यहाँ पे अभी देयर वाज समबडी हु वाज अ जावा डेवलपर। अब वो जावा डेवलपर डेवलप करके कोड डेवलप करके खुद के कंप्यूटर पे रखेगा तो क्या फायदा? जब तक किसी सर्वर के ऊपर रन नहीं करता तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे ही होस्टिंग का मतलब होता है आप कोई एक HTML CSS में कोड डेवलप करो और किसी सर्वर के ऊपर उसे रन करो। वी कॉल इट होस्टिंग अ वेबसाइट। अब आप अगर GoDaddy.com वगैरह कुछ यूज करते हो, वहाँ पे होस्टिंग में आपको समझेगा नहीं कि पीछे सर्वर है, लेकिन GoDaddy बोलेगा अगर आपको होस्टिंग करना है तो साल के 6,000 रुपए दे दो। बराबर है। यस यस तो होस्टिंग इज सिंपली दिस, यू टेक अ कोड, यू रन इट ऑन अ वेबसाइट, दैट इज होस्टिंग। यस सर रन ऑन वो अ सर्वर। एडब्ल्यूएस से कैसे डिफर है ये पूछना था। AWS में आप होस्टिंग कर सकते हो ना, अभी देखोगे तो आप मैंने ये सर्वर के ऊपर होस्टिंग किया है। यस यस करेक्ट। सो ओके आई हैव सर टेक्निकली डन होस्टिंग। ऑलराइट, let's maybe quickly resume our presentation. We'll take more questions at the end, of course. तो अभी हमने वो sneak peek देख लिया. We understood what is. Let me put away the spotlight from my end. How do we do that? Yeah, now you guys should be seeing the screen. Okay. Moving on. Now, before we jump into what's in for tomorrow, sir, should we take a view from Sachin? Yeah, I think Sachin will have a view from you on the day 4. So probably let's discuss what's in store for tomorrow. आज हमने व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग देखा, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड देखा, हमने एक रियल टाइम यूज केस भी डिस्कस किया, बिहाइंड द सीन्स हमने देखा कि बैकएंड में AWS कैसे चलता है। कल हमें AWS का अकाउंट बनाना है हम सबके लिए। अब ये क्यों जरूरी है? जो आपने आज अकाउंट देखा ना AWS का, आपके क्लाइंट का या फिर आपके कंपनी का वेबसाइट वैसे ही दिखने वाला है, डिट्टो। अगर आप लाइव उस AWS के अकाउंट में प्रैक्टिस करोगे तो जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको प्रैक्टिस या फिर काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन अ रियल टाइम एनवायरनमेंट, it's going to only build your confidence when you actually step into the industry. So that's something that we'll see tomorrow. Along with that, we'll also see a console walkthrough, how AWS console looks like, what each component means, what is the budgets in AWS account. You can literally set your own budget, and then we'll dive into understanding of regions and availability zones. That's something that we'll cover tomorrow. This is the platform building for AWS. आज हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव देखा, कल हम लोग टेक्निकल प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे हमारे लिए। जैसे ही आप टेक्निकल प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे, आगे की चीजें बहुत आसान हो। Things will be more interesting if you'll spend some time on doing a little homework. अगर आपको पहले से थोड़ी सी कोई चीज मालूम होती है और उसके बारे में नया कुछ समझ में आता है तो सीखने में मजा आता है। जैसे व्हाट्सएप आपको ऑलरेडी मालूम है, जब व्हाट्सएप ने स्टेटस इंट्रोड्यूस किया तो आपको किसी ने आके घर पे सिखाया नहीं, है ना? आप खुद से ही सीख गए। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप मालूम था एंड इट वाज फन। सिमिलरली वी विल हैव मोर फन लर्निंग टेक्निकल थिंग्स इफ यू जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क। तो आज का होमवर्क इज वेरी सिंपल, एक्सप्लोर मोर सक्सेस स्टोरीज रिवॉल्विंग अराउंड AWS। ये आप इंडिया बेस्ड देखो, गूगल करो इंडिया बेस्ड सक्सेस स्टोरीज फॉर AWS एंड यू विल गेट सो मेनी कंपनीज। शादी.com, फासोज जहाँ से आप फूड ऑर्डर करते हो, एयरबीएनबी, ये सारे AWS को यूज करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग Spotify को यूज करते हैं गाना सुनने के लिए, अगेन एन AWS सक्सेस स्टोरी। तो एक्सप्लोर मोर, देखो कि आपके जान पहचान वाला कोई सक्सेस स्टोरी है क्या वहाँ पे। देन गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु लीड्स द क्लाउड मार्केट बाय लुकिंग एट बिजनेस मीडिया रिपोर्ट्स ऑनलाइन। हमें क्लाउड सीखना है, ये तो समझ में हो गया, समझ में आ गया, राइट? हमें जॉब मार्केट समझ में आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो समझ में आ गया, व्हाई क्लाउड इज द नीड ऑफ द आवर ये समझ में आ गया। अब AWS क्यों, एजर क्यों नहीं, GCP क्यों नहीं, वो छोड़ो, अलीबाबा या फिर ओरेकल क्लाउड क्यों नहीं, है ना? तो सोचो अगर मैंने आपको पूछा कि मुझे सिम कार्ड लेना है नया, आप लोग मुझे क्या आइडिया रिकमेंड करोगे? नो। व्हाट वुड यू रिकमेंड? एयरटेल। एयरटेल या फिर जियो, बराबर? आप दो ही रिकमेंड करोगे, आप बाकी कुछ नहीं रिकमेंड करोगे, है ना? अगर आपको मुझे अच्छा रिकमेंडेशन देना है तो जैसे आप ब्लाइंडली बोलते हो कि सर एक काम करो, गो एंड बाय एयरटेल, आज बंद करके, या फिर गो एंड बाय जियो। जैसे ये दो जायंट्स है ना हमारे टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के,
वैसे ही दुनिया का जायंट कौन है क्लाउड मार्केट का, वो आप मुझे रिसर्च करके बताना। जस्ट डू अ क्विक गूगल। यहाँ बात दोस्तों से पूछ के, जो लोग खुद क्लाउड में काम के लिए नहीं है वो तो आपको नहीं बता पाएंगे। जस्ट डू अ क्विक गूगल सर्च, बिजनेस मीडिया रिपोर्ट्स देखो एंड समझो कि क्लाउड का जायंट कौन है। जो जायंट है हमें उस पर फोकस करना है एंड डोंट गो बाय व्हाट आई से, है ना। मैं तो आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है। सो जस्ट गेन दैट अंडरस्टैंडिंग एंड द लास्ट थिंग इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये भी देखो कि AWS कौन से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब मैं अचानक से सर्टिफिकेशन पे क्यों आ गया, हमारा करिकुलम तो सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड नहीं है, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड है ज़्यादा। सर्टिफिकेशन देख के आपको समझ में आएगा कि क्लाउड या फिर AWS इज जस्ट नॉट वन टेक्नोलॉजी, इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे डेटाबेस इंजीनियर आके क्लाउड डेटाबेस इंजीनियर बन सकता है, नेटवर्किंग इंजीनियर बन सकता है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, यू नेम इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन AWS। तो आपका अगर एग्जिस्टिंग कोई स्किल सेट है तो वो ऑफकोर्स आपको काम में आएगा, आपका स्किल सेट कहीं वेस्ट नहीं होने वाला। आपको लिनक्स आता है, गुड, क्लाउड पे आके लिनक्स एडमिन बनो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर बनो। यू नो टेस्टिंग, यू बिकम अ क्लाउड टेस्टिंग इंजीनियर। यू नो जावा डेवलपमेंट, यू बिकम अ क्लाउड डेवलपर। सो मेनी थिंग्स कैन बी अचीव्ड। ओके, तो एक्सप्लोर द सर्टिफिकेशन ऑप्शंस। आपको दिखेगा एक्चुअली कि AWS ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। इट कुड बी योर गेटवे इनटू अ वेरी इलस्ट्रियस IT करियर, राइट। एंड अगेन मैंने जानबूझ के ये होमवर्क में लिखा है, अगर मैं यहाँ पे वो आर्टिकल शेयर करूंगा तो यू वुड थिंक आई एम बायस्ड, राइट। लेट्स डू आवर ओन रिसर्च। ऑलराइट, नाउ ओपनिंग द फ्लोर और क्वेश्चंस before we jump into or before we wrap up the session. I would like to have a open connect with you guys. I would like to have an ये देखने में बहुत मजा आएगा कि 10 लाख 20 लाख 15 लाख इतना इजी नहीं होता। उसके लिए उन लोगों ने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, इसका ये बिगिनिंग है। इन लोगों ने भी ये सेशंस किए, फर्स्ट ग्लांस पे जो डेमोस्ट्रेशंस अटेंड किए, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग ये 4 दिन का जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा लाइव में जैसे अभी इंटरेक्ट करके हम लोग सीख रहे हैं, उसी बेसिस पे कोई भी आपका टेक्निकल डाउट हो, नॉट टेक्निकल डाउट हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो मेक श्योर कि आप पूरा फोकस करके ये इन्फॉर्मेशन गेन करें। जो आपको असाइनमेंट्स दिए गए हैं, छोटा छोटा असाइनमेंट्स हो, लेकिन वो जब आप करोगे तभी आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे आज हम लोगों ने असाइनमेंट लिखी थी, सिंपल असाइनमेंट थी, अपलोड योर CV। अपलोड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा